Hello and welcome everyone to our new video where we are going to learn the concept rate of chemical reaction from chapter number 3, that is chemical reactions and equations. Okay, in the previous lecture we have seen the definition of endothermic and exothermic reaction. We have gone through different types of reactions in our previous lecture. Now let us see what is the rate of chemical reaction. Now when I speak about rate, it is not about the cost, it is about the speed of the chemical reactions. Okay, some reactions are very much slow, whereas some reactions are performed very much quickly. Okay, so let us see on what factors does this rate of chemical reaction depends. Before going to that, your six examples are given to us. Okay, the first example, cooking gas starts burning on ignition. In second example, iron article undergoes rusting. Third example, erosion of rocks takes place to form soil. Fourth example, alcohol is formed on mixing yeast in glucose solution under proper condition. Fifth, effervescence is formed on adding baking soda into a test tube containing dilute acid. And sixth example is a white precipitate is formed on adding dilute sulfuric acid to barium chloride solution. So your six examples are given of chemical reactions. After carefully reading the examples, you may understand that some of the reactions are very much quick, but some reactions are very much slow. Okay, so let us take an example of the first reaction. So cooking gas starts burning on ignition. So how much time does it take when you ignite the cooking gas? It takes almost less than 1 second to start burning. Okay, so this shows that this reaction is very much quick. But if you look at the example number 3, okay, wherein erosion of rocks takes place to form soil. Okay, now this reaction is very much slow. According to me, 1 centimeter of formation of soil layer. Okay, so 1 centimeter of layer of soil forms in 1,000 years. So a very much slow reaction it is. So let us see on what factors all these reactions depend. Okay, rate of the reaction depends. So it can be seen from the above examples that some reactions are completed in short time, that is occur rapidly, while some other require long time for completion, that is occur slowly. It means that the rate of different reactions is different. ओके कुछ रिएक्शंस जो है वो बहुत जल्दी होते हैं, परफॉर्म हो जाते हैं, और कुछ रिएक्शंस को परफॉर्म होने के लिए, कुछ रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है. इसका मतलब क्या है कि कुछ रिएक्शन का रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है और कुछ रिएक्शन का रेट जो होता है वो कम होता है. ओके, नाउ द सेम रिएक्शंस ऑकर्स एट अ डिफरेंट रेट ऑन चेंजिंग द कंडीशंस. कुछ रिएक्शंस जो है सेम रिएक्शंस, वो कंडीशन अगर हम लोग चेंज करेंगे तो परफॉर्मिंग टाइम जो है वो भी चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, इरोजन ऑफ रॉक जो है डेफिनेटली बहुत ही स्लो रिएक्शन है, लेकिन अगर मैं कंडीशन चेंज करता हूँ, इस कंडीशन चेंज करता हूँ मतलब क्या है कि मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ रॉक के ऊपर, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, जो इरोजन है वो बहुत जल्दी होगा. ओके, इसका मतलब क्या है कि कंडीशन चेंज करने के बाद रिएक्शन के रेट में आपको फर्क देखने मिलेगा. Okay, for example, during winter, long time is required for setting milk into curd, while at higher temperature during summer, the rate of setting of milk increases and the curd is formed early. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको समझने के लिए. देखो, ठंडी के समय में ड्यूरिंग विंटर टाइम जो मिल्क है उसको दही में कन्वर्ट होने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन समर टाइम में जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, ऐसे कंडीशन में आप देखोगे कि जो मिल्क है वो बहुत ही आसानी से सेट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में. ओके, सो ये कुछ फैक्टर्स है जो हमें स्टडी करना है, जिनके ऊपर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है. सो फर्स्ट है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स. ओके, let us see the reaction of metals, that is aluminium and zinc, with dilute hydrochloric acid. So the reaction is between aluminium and HCl and zinc and HCl. On reaction of both aluminium and zinc with dilute HCl, H2 gas is liberated and water soluble salts of these metals are formed.
So when we are going to react aluminium, okay, that is Al to aluminium with HCl, what we are going to get, okay, so the reaction between aluminium and the molecules of HCl, okay, in this reaction we are going to get aluminium chloride, okay, and also we are going to get the hydrogen gas, okay, and this hydrogen gas is going to be liberated in the reaction. So जब अल्यूमिनियम का रिएक्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो आपको अल्यूमिनियम क्लोराइड दिखने मिलेगा, ओके, मतलब मेटेलिक सॉल्ट यहाँ पर फॉर्म हुआ है और उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रहा है रिएक्शन में, ओके। सिमिलरली जब आप लोग जिंक का रिएक्शन करोगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वहां पर भी आपको जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट दिखने मिलेंगे और हाइड्रोजन गैस जो होगा वो लिबरेट होगा। लेकिन यहाँ पे फर्क आपको क्या देखने मिलता है कि जो अल्यूमिनियम मेटल का रिएक्शन है वो जिंक मेटल से ज्यादा फास्ट होगा, ओके। सो द रिएक्शन ऑफ अल्यूमिनियम इज फास्टर देन द रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो द नेचर ऑफ द मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस। यहाँ पर जो रेट में आपको फर्क देखने मिल रहा है केमिकल रिएक्शन की, इसमें जो आपकी स्पीड है वो स्पीड में जो फर्क आपको देखने मिल रहा है वो किस वजह से देखने मिल रहा है, मेटल के नेचर की वजह से। देखो अल्यूमिनियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है और इसी वजह से अल्यूमिनियम का रिएक्शन जो है वो जिंक से ज्यादा फास्टर है, ओके। और जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है, इस वजह से उसका रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, अल्यूमिनियम के रिएक्शन से स्लोअर होगा। इसका मतलब क्या है कि नेचर ऑफ रिएक्टिविटी जो होता है रिएक्टेंट्स का वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर उसका आपको असर देखने मिलेगा। मतलब अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो उसका रिएक्शन फास्ट होगा, अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव नहीं है लेस रिएक्टिव है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो नेचर और द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट्स इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, ओके, which is going to alter the rate of chemical reaction. Now the second factor is size of particles of reactant. So here also we can conduct a simple experiment where we have to take pieces of Shahabad tile and also we have to take the powder of Shahabad tile. Now we are going to dilute, okay, we are going to mix the pieces of Shahabad tile with dilute HCl, okay. And also in the another test tube we are going to mix the powder of Shahabad tile with dilute hydrochloric acid. Now, when we see, okay, when we mix both these substances or both these compounds in the test tube, what we are going to see? We are going to see the effervescence of CO2. Okay, so the carbon dioxide gas is going to be liberated in this reaction. So, the reaction of Shahabad tile with HCl. Okay, let us see what is the reaction. So जब शाहाबाद टाइल के जो पीसेस होंगे उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उसको जब हम लोग मिक्स करेंगे HCl में तो CO2 गैस इवॉल्व होगा और उसके पाउडर को भी जब हम लोग मिक्स करेंगे HCl में तभी भी CO2 गैस क्या होने वाला है, इवॉल्व होने वाला है। लेकिन टाइल का जो रिएक्शन है, शाहाबाद टाइल के पीसेस का जो रिएक्शन है HCl के साथ वो क्या है, स्लो है। और जो पाउडर का रिएक्शन है, शाहबाद टाइल के पाउडर का जो रिएक्शन है HCl के साथ वो क्या है, बहुत ही फास्ट है। इसका मतलब क्या है कि अगर सब्सटेंस का साइज ज्यादा होगा तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, कम होगी। और अगर सब्सटेंसेस के साइज कम होगा, उसका साइज कम होगा, सब्सटेंस का जो साइज है वो स्मॉल होगा तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, ओके। सो इसका मतलब क्या है, इफ द साइज ऑफ द रिएक्टेंट इज bigger or it is more, then the reaction is going to be slow, and if the size of the reactant is small
then the reaction is going to be faster. Okay, so रिएक्टेंट्स के साइज के ऊपर भी रिएक्शन की जो रेट है वो डिपेंड करती है. ओके, third is concentration of the reactants. Okay, so if the reactant is dilute in nature, the reaction is going to be slow, and if the reactant is in concentrated in nature, then the reaction is going to be faster. Okay, यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया हुआ है. हम लोग CaCO3 को, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट को अगर रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसका जो रिएक्शन होगा वो स्लो होगा विथ कंपैरिजन टू the reaction of CaCO3 with concentrated hydrochloric acid. So same chemical CaCO3 को अगर हम लोग dilute HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन स्लो होगा, और अगर हम लोग वही सेम केमिकल को रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो उसका रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा. ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन. डेफिनेटली टेम्परेचर के ऊपर भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है. ओके, अगर टेम्परेचर कम है तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी. ओके, सो इफ द टेम्परेचर इज लो देन द रिएक्टिविटी और द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लोअर, and if the temperature is higher then the reaction time is also less. Okay, that means the rate of reaction is properly quick. Now the last factor, okay, which is responsible for the rate of chemical reaction is catalyst. Now it is a substance that we use to increase the rate of reaction. So if any reaction is slower and if we want to increase the rate of the reaction, that means we want to complete the reaction in less time, then we can use कैटालिस्ट. ओके, कैटालिस्ट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है. ओके, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं अपने फैक्ट्री में. ओके, आपकी एक फैक्ट्री है और आप अपने फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट, एक केमिकल तैयार करते हैं. तो केमिकल को तैयार करने के लिए ऑब्वियसली आप रिएक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं. ओके, रिएक्शंस आप परफॉर्म करेंगे. सेम एक और फैक्ट्री है और वो भी वही प्रोडक्ट तैयार कर रही है अपने फैक्ट्री में. ओके, सो दो कंपनीज है, दोनों कंपनीज का प्रोडक्ट सेम है और दोनों कंपनीज ये चाहते हैं कि उसका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सबसे पहले पहुंचे, मार्केट में सबसे पहले डिलीवर हो. तो जाहिर सी बात है कि दोनों कंपनीज का एम क्या होगा कि उसका रिएक्शन जल्द से जल्द परफॉर्म हो जाए. तो रिएक्शन जल्द से जल्द परफॉर्म हो जाए, प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे जो रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट के ऊपर डायरेक्टली असर नहीं करने वाला है, वो प्रोडक्ट को भी चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा. ओके, सो द सब्सटेंसेस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस. ऐसा सब्सटेंस जिसकी मौजूदगी में जो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट जो है वो चेंज होगा विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कैटालिस्ट. ओके, ये किसी भी तरह का केमिकल चेंज नहीं करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंज की स्पीड को बढ़ाने वाला है. ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैटालिस्ट बोलेंगे. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो आप लोग देख सकते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट दैट इज KlClO3. ओके, ये जो केमिकल है इसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं. ओके, इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन. ओके, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो है. ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ओके, while heating is very 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 much slow. लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि इसका डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी हो जाए, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कैटालिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. और वो कैटालिस्ट क्या है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड. क्या कैटालिस्ट है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड. ओके, जब हम लोग ये कैटालिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही जल्दी परफॉर्म होगा. ओके, so this is the example of a catalyst, manganese dioxide. What is the name of the catalyst, manganese dioxide. Okay, so this is about the catalyst.
Now, do you know that one or more chemical reactions take place during every chemical change? Okay. Some chemical reactions occur at fast speed, whereas some occur at slow speed. Okay. Strong acid and strong base react instantaneously. So the reaction of strong acid and strong base is going to be quicker. In our body, enzymes increase the rate of physiological reactions. In our body also, certain reactions are being performed by our body parts, okay, by the systems of our body. But the rate of these reactions is increased by enzymes. So enzymes are the catalyst present in our body, which increase the rate of physiological reactions in our body. Now, perishable foodstuffs get preserved longer in a refrigerator. The rate of decomposition of foodstuff gets lower due to low temperature and its freshness is maintained. सो जो फूडस्टफ्स होते हैं उन्हें हम फ्रिज में क्यों स्टोर करके रखते हैं? क्योंकि फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, और हमने अभी अभी स्टडी किया है कि लो टेम्परेचर में रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि फूडस्टफ जो है वो जल्दी खराब नहीं होते जब हम उसे लो टेम्परेचर में स्टोर करके रखते हैं। ओके, वेजिटेबल्स क्विकली ऑन ऑयल रेदर देन ऑन वाटर। तेल में जो वेजिटेबल है वो जल्दी तैयार होता है, जल्दी बनता है, और पानी में थोड़ा टाइम लगता है बनने को। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो टेम्परेचर होता है ऑयल का वो क्या होता है, जल्दी इंक्रीज होता है। द केमिकल रिएक्शंस आर प्रॉफिटेबल इन द केमिकल फैक्ट्रीज इफ देयर रेट इज फास्ट। ओके, तो फैक्ट्रीज में जो फैक्ट्री जल्दी से जल्दी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके प्रोडक्ट तैयार कर सकती है उसका ज़्यादा फायदा है। ओके, इसलिए वो लोग भी इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि उसका केमिकल रिएक्शन कितना जल्दी परफॉर्म हो सकता है। The rate of chemical reaction is important from environmental point of view as well। देखो, environment को मद्देनजर रखते हुए भी chemical reaction का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है। The ozone layer in the Earth atmosphere protects the life on Earth from the ultraviolet radiation of the sun। The process of depletion or maintenance of this layer depends upon the rate of production or destruction of ozone molecules। देखो, एक रिएक्शन है जो अर्थ में परफॉर्म हो रहा है, ओके, और एटमॉस्फेयर में परफॉर्म हो रहा है, और वो रिएक्शन क्या है, डिप्लीशन और मेंटेनेंस हमें देखने मिलेगा ओजोन मॉलिक्यूल्स का। सो ओजोन मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन या फिर उसका रिडक्शन जो हो रहा है एटमॉस्फेयर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिस इज। द ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ, ओके, atmosphere protects the life on the earth from the ultraviolet radiation of the sun। so sun से जो यूवी रेडिएशन निकल रहा है, यूवी लाइट जो निकल रही है, उससे हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम ओजोन लेयर कर रहा है। ओके, और ओजोन लेयर डिप्लीट होगा या फिर कंट्रोल्ड रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। Okay, so in this lecture, we have seen what are the factors which are going to affect the rate of chemical reactions. Okay, in all, we have gone through the 5 factors: nature of reactants, size of the particles of reactants, concentration of the reactants, temperature of the reaction, and the catalyst. Okay, in the next lecture, we are going to study about the oxidation and reduction, and also we will study about the corrosion. Okay, it is also a reaction which takes place simultaneously in the environment, and we are going to study this reaction. So this is it for today's lecture. We will meet in the next lecture. Until then, goodbye.